Good evening, everyone. How are you doing? Are you all fine? Great, great, wonderful. So we'll carry on the session from the point that we left yesterday. So if you remember, you have to quickly tell me if my screen is visible to you. Is my screen visible to you? Yes? Yes, sir. Yes? Okay, great. So if you remember, we were talking yesterday about certain ways in which we can be polite. So we saw certain words in English. We said please, we talked about thank you, we talked about you're welcome, we talked about excuse me, sorry, may I, pardon. Then we talked about could you, and that was a little formulation to continue to ask something. Could you help me, please? Could you help me, please? Then we saw would you mind? I appreciate, kindly, allow me, it would be great if we spoke English. It would be great if we spoke English. आपको याद है कल हमने सीखा था it would be great के साथ हम हमेशा past tense लगाते हैं जिससे हम एक सिचुएशन बनाते हैं हाइपोथेटिकल कितना बढ़िया हो अगर हम अंग्रेजी बोलें तो राइट इस तरीके की हम बात बोलते हैं I'll just let people in. Alright, so all right, I can see Vrinda. Good evening, Vrinda. How are you doing? Can you hear me, Vrinda? You'll have to unmute and you'll have to say yes if you can hear me. Can you? Vrinda, can you hear me? Okay, nevertheless, we'll carry on. So, is the screen visible to you, Vrinda? I just wanted a confirmation from your side so that things be very clear at the outset. Vrinda, can you unmute yourself and tell me if I'm audible to you, if the screen is visible to you? Okay, nevertheless, we'll carry on. So, if you remember, we talked about it would be great if, and the remaining clause is in past tense. We'll move ahead. I'm grateful to you. I'm thankful to you. These were some of the formulations that we used the other day, which was yesterday. I'll just let people in. Yes. Okay. Now, if you look at the next one, it is I beg your pardon. With your permission, if you don't mind, I would like to, would you please? We have seen all these formulations yesterday. I welcome everyone. Those who have just joined, good evening. I hope you all are doing fine. We are carrying on from the point that we left yesterday. So I would like to, would you please? Thank you very much. I'm so sorry to bother you. I am so sorry to bother you. And then we have one more that you see at the bottom of the list, which is it's a pleasure. It's a pleasure, right? If you helped someone and this person says to you, thank you say, it's a pleasure. It's a pleasure. Generally हम ये तब बोलते हैं जब कोई बड़ा व्यक्ति, कोई सीनियर पर्सन जिसकी हमें सहायता करे, बहुत अच्छा लगा, हमने कहा ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है. It's a pleasure for me. It's a pleasure, sir. It's a pleasure, ma'am. Right? Okay. Now we'll move ahead. I think we saw these portions as well. We'll just quickly run through once. एक बार हम इसको run through कर लेते हैं. How may I help you? मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? Can I assist you? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? Would you kindly? And this is a way in which you start moving ahead in a conversation. Would you kindly? And then you move ahead. I apologize. अगर आपको माफी मांगनी है किसी तो आप कहेंगे I apologize for my comments. I apologize for what I said. I apologize for what I did. Right? आपने जो भी किया उसके लिए आप माफी मांगेंगे यदि तो sir, I really apologize for what I did. ये तरीका है आप माफी या क्षमा मांग सकते हैं. Then how kind of you? आपकी कितनी कृपा है, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने दयालु हैं. How kind of you? किसी ने आपकी बहुत सहायता करी तो आपने कहा how kind of you. Then oh, that would be lovely. That would be lovely. किसी ने आपको कहा tomorrow we will listen an English song. Tomorrow we will listen an English song. तो आपने कहा oh, that would be lovely, sir. That would be lovely. बड़ा मजा आएगा. ये तो बड़ा शानदार होगा, right? That would be lovely. I appreciate your help. I appreciate your help. अगर आप किसी की हेल्प को अप्रिशिएट करते हैं, उसकी सहायता को आप सच में आप धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप कहते हैं I appreciate your help. Thank you. Then अगर आपको किसी बात का पता चला तो आपको बड़ा दुख लगा, आप बड़े दुखी हुए तो आपने कहा I am very sorry to know this. I am very sorry to know this. I am very sorry to know this.
आपको किसी से थोड़ी सहायता लेनी है, कुछ उसके चंद क्षण लेने हैं, तो आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। आप कुछ चंद क्षण अपने मुझे दे सकते हैं, मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आगे, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आपके घर कोई मेहमान आए हैं, आप उनको कहना चाहते हैं बिल्कुल फील एट होम। एक और तरीका होता है, लिख लीजिए फील एट होम। मैं इसके लिए आपके लिए इसमें लिख देता हूं, फील एट होम, फील एट होम। फील एट होम हम एक एक्सप्रेशन है जो हम कहते हैं लोगों को, जब हम उनको कहते हैं एकदम घर का सा आप माहौल महसूस कीजिएगा, फील एट होम, प्लीज बी कंफर्टेबल, फील एट होम। या फिर प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आप आराम से बैठ जाइए, आप आराम से हो जाइए, आप आराम पे आ जाइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, राइट। जनरली कोई जब व्यक्ति एकदम से आता है तो हम उसको थोड़ा समय देते हैं सेटल होने के लिए, तो हम कहते हैं प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। या फिर फील एट होम, राइट। फील एट होम थोड़ा सा पर्सनल टच देने के लिए होता है कि आपके घर कोई आए तो आपने कहा फील एट होम, बिल्कुल घर जैसा ही आप महसूस कीजिए, ऐसा मत महसूस कीजिए कि आप कहीं बाहर हैं। ओके, and the last one that we saw yesterday, and the last one that we saw yesterday, जो कल हमने आखिरी देखा था, वो था may I have your attention please, may I have your attention please। कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है, शोर शराबा हो रहा है, आपने कहा जोर से may I have your attention please, यानी सब लोग एकदम से आपकी तरफ देखेंगे, आप उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, राइट। These are the ways in which you can pull or draw people's attention towards you. Okay, let's move ahead. Now today we are going to move ahead again with some more expressions, और हिंदी में मैंने आपके लिए ट्रांसलेशन लिखा है तो बहुत क्विक होगा, बहुत आसान होगा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसमें। कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज एक तरीका है, बहुत पोलाइट तरीका है। कल दीप्ति ने भी पूछा था कि सर हम कुड यू और कैन यू का फर्क क्या है, होप आपको क्लियर हो चुका होगा अब। सो कुड यू प्लीज के साथ हम हमारा क्वेश्चन रख सकते हैं, क्या आप कृपया, और जो भी आपकी बात है। वुड यू माइंड, आपको आपत्ति तो नहीं होगी अगर, जो भी बात है, या आपको आपत्ति होगी तो उस तरीके से हम इस बात को कहते हैं। Just let me add one more person. All right. Okay, we'll carry it on. Now, I would appreciate if, I would appreciate it if, I would appreciate it if। ये एक तरीका है, मुझे, आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा है मैं आभारी रहूंगा, या मैं आभारी रहूंगा, इसको हिंदी में थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है, मैं आभारी रहूंगा यदि। If you want to say someone in this way, I would appreciate it if you helped me। कल वाला कंस्ट्रक्शन जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन था। इफ के साथ हम जो पोर्शन यूज करेंगे वो है पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट का, और उसके साथ जो हिस्सा रहता है वो है वुड वाला। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, आई वुड अप्रिशिएट इफ, मैं बहुत आभारी रहूंगा, मैं बहुत आभारी रहूंगा, इसको मैं कर देता हूं, मैं है यहां पे, मैं आभारी रहूंगा अगर, और आई वुड अप्रिशिएट इफ यू helped me। आपको याद है कल हमने सीखा था कि इफ के साथ जो पोर्शन चलेगा उसमें हमेशा सिंपल पास्ट हमें यूज करना है और बाकी वाले हिस्से में वुड लगेगा। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ यू हेल्प्ड मी आई वुड अप्रिशिएट इट, अन्यथा आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू हेल्प मी। दोनों हिस्से आगे पीछे कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इफ के साथ हमेशा आपको पास्ट टेंस सिंपल पास्ट को ही चिपका के रखना है, ज्वाइन करके रखना है, और दूसरे वाले हिस्से में वुड लगाना है। ये बहुत अच्छा क्लॉज है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जिसके अंदर वो चीज अभी हुई नहीं होती है पर उसकी संभावना होती है होने की। तो आपने किसी को कहा सर आई वुड अप्रिशिएट इट, आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू हेल्प्ड मी, यानी अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं बहुत आपका आभारी रहूंगा, इस तरीके की बात है। इट्स अ वेरी पोलाइट वे। देन थैंक यू वेरी मच, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये बहुत अच्छा वाक्य है, आपने किसी को असुविधा दी तो आप कहते हैं असुविधा के लिए खेद है, क्षमा चाहूंगा आपको ट्रबल देने के लिए, असुविधा के लिए खेद है, तो आप कहेंगे आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। कई बार लोग कॉज्ड भी लगाते हैं, कॉज्ड, जो भी आपको असुविधा हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। देन नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी कुड आई, एक्सक्यूज मी, आपको याद है कल हमने आपको सिखाया था, आपको किसी को एकदम से इंटरप्ट करना है तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी कुड आई, एंड व्हाटएवर यू वांट टू से, एक्सक्यूज मी कुड आई गेट द बिल प्लीज, एक्सक्यूज मी कुड आई गेट द बिल प्लीज, क्या मैं बिल मुझे मिल सकता है, यानी आपने जो भोजन किया है रेस्टोरेंट के अंदर उसके बाद आप बिल मांगते हैं। या फिर वुड इट बी पॉसिबल टू, वुड इट बी पॉसिबल टू
ऑर्डर ऑनलाइन, आपने किसी को पूछा ये जो चीज बड़ी अच्छी है, क्या ये ऑनलाइन भी ऑर्डर कर पाना पॉसिबल है? वुड इट बी पॉसिबल टू ऑर्डर ऑनलाइन? ऑफ कोर्स यस। नो आई एम सॉरी इट्स नॉट पॉसिबल, जो भी उसका रिस्पॉन्स है। आई अपोलोजाइज फॉर, हमने कल सीखा था आई अपोलोजाइज, लेकिन आप किस चीज के लिए अपोलोजाइज करना चाह रहे हैं वो भी आप आगे लिख सकते हैं। आई अपोलोजाइज फॉर माई रूड बिहेवियर, आई अपोलोजाइज फॉर माई रूड बिहेवियर, मैं क्षमा चाहूंगा मेरे रूड बिहेवियर के लिए। आई अपोलोजाइज फॉर माई रूड बिहेवियर येस्टरडे, आई अपोलोजाइज फॉर माई रूड बिहेवियर येस्टरडे। जो भी बात है उसको आप स्पष्ट करके लिखेंगे तो और ज्यादा उसमें वजन आएगा और क्लैरिटी होगी कि आप क्यों अपोलोजाइज करना चाह रहे हैं, एक, और दूसरा आपको पता है कि किस चीज के कारण आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, यानी सामने वाले को आपने हिंट दे दिया कि मैं अपना जो खराब व्यवहार है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा चाहूंगा, राइट? ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ मूविंग अहेड, मे आई हेल्प यू, अगर आपको किसी को सहायता के लिए पूछना है तो आप कहेंगे मे आई हेल्प यू। हाउ कैन आई असिस्ट यू, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। ये बात आप शुरुआत में भी कह सकते हैं और अंत में भी कह सकते हैं, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। आपसे मिलने का ये जो है ये बड़ा मुझे अच्छा लगा, या आपसे मिलकर खुशी हुई। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, राइट? इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू। आप कई बार इट्स ऑलवेज, I'll have to freeze it. आप यहाँ पे always भी लगा सकते हैं, it's always ALWAYS, it's always a pleasure to meet you। आपका कोई मित्र है या कोई आपका टीचर है या कोई आपका कलीग है, आप उसको कहते हैं आपसे जब भी मिलता हूं ना बड़ा मजा आता है, it's always a pleasure to meet you sir, it's always a pleasure to meet you ma'am। Then thank you for your understanding। कई लोग हमारी स्थिति को समझ जाते हैं ना, वही बहुत बड़ी बात होती है, हमें उनको उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए, जो हमने कल सीखा था ना, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम, उसके साथ ही साथ हमें कहना आना चाहिए थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप समझे मेरे हालात को, आपने मेरी स्थिति को समझा, उसके लिए धन्यवाद। आगे, आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, आपने जो इतना धैर्य रखा ना उसको मैं उसकी सराहना करता हूं, मैं उसको आई रियली अप्रिशिएटेड, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूं। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको आपत्ति ना हो तो, अगर आपको बुरा ना लगे तो, ये एक तरीका होता है पूछने का। आपको याद है कल हमने पूछा था किसी व्यक्ति से उसके नेशनैलिटी के बारे में, इफ यू डोंट माइंड मैडम, इफ यू डोंट माइंड सर, कुड यू टेल मी व्हिच कंट्री डू यू कम फ्रॉम? इफ यू डोंट माइंड सर, इफ यू डोंट माइंड मैडम, कुड यू प्लीज टेल मी व्हिच कंट्री डू यू कम फ्रॉम? अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे बता सकते हैं आप किस देश से आते हैं, आप किस देश से बिलोंग करते हैं। ओके, आई बेग योर पार्डन, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो भी आप बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन। या फिर कल हमने सीखा था आप किसी से मतभेद रखते हैं, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं और आप उस बात को रखना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई बेग योर पार्डन बट आई डिफर फ्रॉम व्हाट यू से, आई बेग योर पार्डन बट आई डिफर फ्रॉम व्हाट यू से, राइट? मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन मैं उससे डिफरेंस रखता हूं, जो आप कह रहे हैं ना उससे मेरा विचार नहीं मिलता है। सो आई बेग योर पार्डन बट आई डिफर फ्रॉम व्हाट यू से, आप जो कह रहे हैं उससे मैं फर्क रखता हूं, यानी मेरा अलग मत है। ऑलराइट, I'll unfreeze it. Okay, we'll move ahead. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, यहां ध्यान दीजिएगा। प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। आपके घर मेहमान आते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक स्टेटमेंट है। या आपके ऑफिस में आपके कलीग्स हैं, नए लोग आते हैं, आपको कई बार जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इनका ध्यान रखिए, इनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवाइए, तो एंड में आपने उसको हेल्प किया, सब जगह ले गए, आपने उसको एंड में कहा प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। आपको कोई भी चीज की आवश्यकता हो मुझे बताना। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर असिस्टेंस, और अगर मान लीजिए आप वो व्यक्ति थे जिसकी लोगों ने सहायता करी तो आपने उसको कहा अंत में आई एम ग्रेटफुल फॉर योर असिस्टेंस, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर असिस्टेंस, आपने जो मेरी हेल्प करी उसके लिए मैं आपका ग्रेटफुल हूं। कृष्ण मनी, यू वांट टू से समथिंग? यू आर रेजिंग योर हैंड। सर फुल स्क्रीन नहीं आया। सॉरी, सर फुल स्क्रीन नहीं आया। स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं आप कृष्ण मन्यू? नहीं सर, वो क्या छोटा सा स्क्रीन है, वो पूरा फुल नहीं आया। Others, can you see the whole screen? Yes, sir. Yes, कृष्ण मन्यू, आई थिंक यू जस्ट आप एक बार आप एग्जिट करके फिर से रिकनेक्ट कीजिए, आई एम श्योर आप देख पाएंगे। एट टाइम्स इट गेट्स हैंग्ड, मे बी, राइट? यू कैन डू दैट क्विकली। ऑलराइट,
So I'm grateful for your assistance. ये ऐसा एक वाक्य है जो you can always dash in. You can tell people how grateful do you feel for their help. How thankful do you feel for their help. So I am grateful for your assistance. देखिए होता क्या है, I am grateful, I am thankful से काम चल जाएगा, बन जाएगा, लेकिन आप आगे यदि ये बताएंगे किस कारण से, वो एक एडिशनल एक क्लैरिटी देता है सामने वाले को कि ये सच में इस बात के लिए मेरे को धन्यवाद दे रहा है. When you say I am really grateful for your help, I am really thankful for your assistance, ये जो for your help, for your assistance है, ये बहुत क्लैरिटी देता है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि धीरे धीरे आप अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं और साथ में भी इंश्योर करें कि आप अच्छे तरीके से उस बात को रखें, बजाय कि आप अटके शब्दों में, कंफ्यूज हो शब्दों में, या आप उस बात का मन में विचार रखें लेकिन उसको कह ना पाए. ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ. इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू. आपने जो मेरी सहायता करी उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, और आपकी बहुत कृपा रही मेरे पे, आपकी बहुत कृपा थी मेरे ऊपर. आई होप दिस इज नॉट टू मच ट्रबल. आई होप दिस इज नॉट टू मच ट्रबल. आपने कहा सामने वाले व्यक्ति को, आपने जो फोटोज खींची थी प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा. 20-30 फोटोज हैं और सारी मुझे आप भेजिएगा, और हाँ HD में भेजना. और फिर आपने एंड में उसको कहा आई होप दिस इज नॉट टू मच ट्रबल फॉर यू. आई होप दिस इज नॉट टू मच ट्रबल फॉर यू. मुझे आशा है कि बहुत ज्यादा मुसीबत वाला काम तो नहीं है ना आपके लिए. ऑफ कोर्स होगा ही. फोटोज खींची है, सेलेक्ट करनी है, उनको भेजना है, फिर HD में भेजना है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पेशेंस. तो आपको कहना जरूर चाहिए आई होप दिस इज नॉट टू मच ट्रबल. जब आप ऐसी बात कहेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि इनको भी लगता है कि ये काम थोड़ा सा समय लगाने वाला है, इसमें मेहनत लगती है और उनका कंसर्न है. तो ये बात कहने से सामने वाले को आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लेके आते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज कुड आई ट्रबल यू फॉर. कुड आई ट्रबल यू फॉर, क्या मैं आपको XYZ चीज के लिए परेशानी दे सकता हूं. कुड आई ट्रबल यू फॉर, ये एक अच्छा तरीका है जिसके अंदर हम सामने वाले को पहले कह रहे हैं कि मुझे पता है मैं आपको तकलीफ ही देने वाला हूं, तो मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूं क्या. इस तरीके से आप बात कहेंगे. नेक्स्ट, आई एम सॉरी टू बॉदर यू. ये हमने देखा था, आई एम सॉरी टू बॉदर यू, मैं क्षमा चाहूंगा आपको बॉदर करने के लिए, परेशान करने के लिए. नेक्स्ट, प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज. ये जब आपको लगा कि सही में आपसे कोई अनर्थ हो गया है, कोई गड़बड़ हो गई है, और आप गए उस व्यक्ति के पास, सर प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज, प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज, मेरी जो अपॉलॉजीज हैं, मेरी जो माफी है उसको आप स्वीकार करें कृपया. देन आई वुड बी डिलाइटेड. आई वुड बी डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब बहुत खुश होऊंगा मैं. आई वुड बी डिलाइटेड. मान लीजिए किसी ने आपको कहा प्लीज आई वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर डिनर टुमारो एट माई प्लेस. आई वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर डिनर टुमारो एट माई प्लेस. ओह थैंक यू, आई वुड बी डिलाइटेड टू कम. आई वुड बी डिलाइटेड टू कम. आई वुड बी डिलाइटेड भी चलेगा, लेकिन आप आगे और बता दीजिए कि आप क्यों बहुत खुश होंगे. मैं जो आऊंगा उससे मुझे बहुत खुशी होगी. आई वुड बी डिलाइटेड टू कम. आई वुड बी डिलाइटेड टू ज्वाइन. आप दोनों ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, राइट. आई वुड बी डिलाइटेड, बजाय सिर्फ इतना सा कहने की थैंक यू श्योर, थैंक यू श्योर, आप कहिए कुछ और. आप कहिए तो थैंक यू सो मच, आई वुड बी डिलाइटेड टू ज्वाइन, आई वुड बी डिलाइटेड टू कम ओवर, राइट. इस तरीके से आप यदि कहेंगे अपनी बात तो उसका ज्यादा इंप्रेसिव एक असर होगा, और सामने वाले को भी खुशी होगी कि उन्होंने आपको इनवाइट किया है और आपने भी उतनी ही खुशी, उतना ही एंथुसियाज्म उनको दिखाया है. Alright, let's move quickly ahead. Next you have it's very considerate of you. It's very considerate of you. इसका मतलब ये है कि आपने इस बारे में सोचा, चिंतन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. It's very considerate of you. मान लीजिए उस व्यक्ति ने आपके लिए कुर्सी संभाल के रखी थी कि हॉल भर जाएगा और मेरा फ्रेंड अभी तक आया नहीं है या मेरे कलीग आए नहीं है, तो मैंने कुर्सी संभाल के रखी उनके लिए. तो भीड़ आ रही थी, आप फटाफट घुसे अंदर, आपने अपनी सीट ले ली, आपने कहा ओह आपने सीट बचा के रखी, यू केप्ट अ सीट फॉर मी, थैंक यू. इट्स वेरी कंसिडरेट ऑफ यू. इट्स वेरी कंसिडरेट ऑफ यू. कंसिडरेट ऑफ यू यानी आपने इस बारे में सोचा, आपने इतना ध्यान दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं. और ये बहुत ही आपके लिए एक ऐसी बात है कि आपने कंसिडरेशन रखा मेरे प्रति. सो दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बताया कि आपने मेरे प्रति चिंता रखी, आपने मेरे प्रति कंसर्न रखा, तो इसलिए आप कहते हैं इट्स वेरी कंसिडरेट ऑफ यू. ये हमें कहना चाहिए लोगों को. थैंक यू फॉर योर हेल्प, ये आप जान चुके हैं. आई ट्रूली अप्रिशिएट योर सपोर्ट. आई ट्रूली अप्रिशिएट योर सपोर्ट. मैं सच में आपका जो सपोर्ट है उसको अप्रिशिएट करता हूं. आई ट्रूली अप्रिशिएट योर सपोर्ट. नेक्स्ट, कुड आई आस्क फॉर योर एडवाइस. कुड आई आस्क फॉर योर एडवाइस, क्या मैं आपका विचार जान सकता हूं, क्या मैं आपसे कोई सलाह ले सकता हूं. सो कुड आई आस्क फॉर योर एडवाइस. विद योर परमिशन, आपकी अनुमति से, और मैं जो बात कहूंगा वो आगे कहूंगा. सो विद योर परमिशन सर, कैन आई से समथिंग. आप मान लीजिए क्लास में अनम्यूट करना चाहते हैं, बड़ा फॉर्मल तरीके से बोलना चाहेंगे. अनम्यूट किया, सर विद योर परमिशन कैन आई से समथिंग. यस प्लीज गो अहेड, टेल मी.
so I can always respond to you this way. Okay, would you be so kind as to, would you be so kind as to, और उसके बाद आप जो भी चीज कहना चाह रहे हैं, आप क्या मुझ पे कृपा करेंगे, और जो भी आप बात कहना चाह रहे हैं, उदाहरण के लिए would you be so kind as to help me, would you be so kind as to book my tickets for the show online because I don't have internet on my phone. I don't have internet on my phone, मेरे फोन पे इंटरनेट नहीं है, so would you be so kind as to book my tickets for the movie प्लीज, ये आप बात बोल सकते हैं, राइट? सो आप उसको सामने वाले को बिल्कुल फॉर्मली आप उसको कन्विंस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और सामने वाले को अपना काम बता रहे हैं. ऑलराइट, यहां तक क्लियर है एवरीवन? इज इट ओके? यस और नो? प्लीज टेल मी क्विकली. Yes, sir. ओके, देखिए अब सिर्फ मेरे कहने मात्र से काम नहीं होगा, आपको इनको प्रैक्टिस करना है. मैं किसी भी दिन आने वाले दिनों में आपसे पूछूंगा, नाम लेकर अनम्यूट करने के लिए कहूंगा, और आपसे हिंदी में पूछूंगा, आपको इंग्लिश में मुझे बताना है क्या क्या तरीके होंगे. सो स्टार्ट रिमेंबरिंग दीज, स्टार्ट मेमोराइजिंग देम. एक बार तो आपको बैठ के उसको याद करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी. जब आपकी आदत बन जाएगी तो आपको बोलने में चुटकी लगेगी, सिर्फ बोलने में इतना सा समय लगेगा, अदरवाइज आपके वरना दिमाग में आते नहीं वाले सेंटेंसेस जो बहुत अच्छे हैं, इंप्रेसिव हैं, राइट? सो इंश्योर दैट यू डू दैट. ओके, अब हम कुछ क्विक एक्सप्रेशंस देखेंगे. जब हमें ऐसे बातें बोलनी है, जब आपको बोलना है मुझसे वाह, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एनीवन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. वाओ, वाओ, राइट? वाओ कितना सिंपल है, लेकिन वाओ ये इंपॉर्टेंट है. ये एक तरह का एक एक्सप्रेशन है जो आप यूज करेंगे, वाओ. अगर आपको कहना है नेक्स्ट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये दोनों एक्सट्रीम्स पे हो सकता है. ओ माय गॉड, अगर आप एक्साइटेड हैं, हैप्पी हैं, तो आपने कहा ओ माय गॉड, राइट? आपके चेहरे पे एक अमेजमेंट है, हैरानी है, आप आश्चर्यचकित हैं, ओ माय गॉड, राइट? और साथ में अगर आप दुख की स्थिति में भी हैं तो भी ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, राइट? इट डिपेंड्स आपका क्या टोन है. तो आपको याद है मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, सिर्फ भाषा जो है वो बेजान है, उसमें कोई जान नहीं है, उसमें आपको जान भरनी है, उसमें आपको एनर्जी डालनी है, इमोशंस डालने हैं. सो वही चीज ओ माय गॉड पॉजिटिव होगा या सैड होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशंस दैट यू वुड ऐड ऑन टू इट. तो ध्यान रखिएगा आपको किस तरीके से बोलना है. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, राइट? आप बहुत एक्साइटेड हैं, हैप्पी हैं, बट वहीं पे आप सैड हैं, ओ माय गॉड. आपको कोई दुख भरी बात का पता चला तो आपने कहा ओ माय गॉड, राइट? सो इट हैज टू गो इन लाइंस विद योर इमोशंस. इमोशंस के साथ आपको इसको अटैच करना है. नेक्स्ट, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग. किसने पूछा हाउ डिड यू लाइक दैट न्यू मूवी? हाउ डिड यू लाइक दैट न्यू मूवी? ओह दैट्स अमेजिंग. हाउ डिड यू लाइक द फूड इन द न्यू रेस्टोरेंट? हाउ डिड यू लाइक द फूड इन द न्यू रेस्टोरेंट? ओह दैट्स अमेजिंग, बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है. ओके, नेक्स्ट, अनबिलीवेबल. अनबिलीवेबल यानी अविश्वसनीय, विश्वास ही नहीं किया जा सकता, आप विश्वास नहीं कर सकते. अनबिलीवेबल. ओके, नेक्स्ट, ओ नो, ओ नो, राइट? ये एक तरह का एक्सप्रेशन है जो आपको काम मिलना है व्हेन यू आर लाइक सैड, समथिंग हैपेंड जिसका आपको यकीन नहीं था, आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे. ओ नो. नेक्स्ट, कितना निराशाजनक है, हाउ डिसअपॉइंटिंग, हाउ डिसअपॉइंटिंग. कोई चीज होने वाली थी पर हो नहीं पाई तो आपने कहा हाउ डिसअपॉइंटिंग, हाउ डिसअपॉइंटिंग. नेक्स्ट, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, राइट? व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है. कोई चीज होने वाली थी पर हो नहीं पाई. हो सकता है कोई कमी रह गई है, कोई बात है, लेकिन आपको लगता है कि होनी चाहिए थी, कोई हमसे गलती हुई है. व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, वी डिड नॉट क्लियर द एग्जाम येट वी प्रिपेयर्ड सो हार्ड. We did not clear the exam, yet we prepared so hard. What a shame, what a shame, right? Next, oh dear, oh dear, oh dear. यानी आप जब कहते हैं oh my god, उस तरीके से आप सामने वाले को कह रहे हैं oh dear. Next, I'm so embarrassed. मुझे बहुत शर्म आ रही है. I'm so embarrassed. किसी ने आपको मंच पे खड़ा कर दिया और कहा चलिए थोड़ा एक इंग्लिश में गाना सुनाइए, तो आप पहुंच गए मंच पे, तो आपने कहा I'm feeling really embarrassed. मुझे बहुत शर्म आ रही है. I'm really feeling embarrassed, right? सो अब शर्मिंदगी जो है वो एक्सट्रीम्स पे हो सकती है, नॉर्मल वे में भी और सीरियस वे में भी. मान लीजिए आपका कोई कजन है छोटा और वो बहुत बदमाशी करता है इधर उधर, उसने पार्टी में जाके बहुत चीजों को तोड़फोड़ कर दिया, एंड यू आर फीलिंग, किसी ने पूछा हु हैज कम अलोंग विद दिस किड, हु हैज कम अलोंग विद दिस किड, तो आपने कहा ओह दैट्स मी, आई एम फीलिंग सो एम्बैरेस्ड, मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही है बता नहीं सकता, आई एम फीलिंग सो एम्बैरेस्ड. या फिर कोई ऐसी स्थिति है जैसे मैंने आपको कहा, आपको मंच पे खड़ा कर दिया है, गाना गाइए, आई एम फीलिंग रियली एम्बैरेस्ड.
यानी उसमें थोड़ा सा आपको शर्मिंदगी कम होती है, ज्यादा होती है, बट यू कैन ऑलवेज see it as to what you want to say. How are you feeling? Accordingly, you can use the expression I am feeling so embarrassed या फिर I am so embarrassed. Okay, I love you. It's a very common expression. You are the best. You are the best. You're the best. You are को हम short कर देते हैं. You're the best. आप सबसे बढ़िया हैं. Okay, how sweet. किसी ने आपको कुछ दिया या किसी ने आपकी तारीफ की, आपने कहा how sweet of you. ये भी हम बोलते हैं how sweet of you. How sweet of you. किसी ने कहा सर हमें अच्छा लगा आपसे पढ़ के, तो मैंने कहा that's so sweet of you. How sweet of you. How sweet of you. ये बोलना हमें आना चाहिए, बिकॉज देखिए कॉम्प्लीमेंट लेना भी एक कला है. आपकी कोई तारीफ करता है तो हम क्या करते हैं, हम झेप जाते हैं, हम कहते हैं क्या बोले, स्माइल करके हम जस्ट उसको रैप अप कर देते हैं. बट आप सामने वाले को थोड़ा सा पॉजिटिवली जवाब दीजिए ना, आप कहिए उसको ओ दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू, दैट्स सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू. ये बोलिए, आप सीखिए. कोई आपकी तारीफ करे तो उस तारीफ को कैसे पॉजिटिवली लेना, ये भी बहुत हमें आना चाहिए अंग्रेजी के अंदर. एट टाइम्स होता क्या है कि हम सिर्फ मुस्कुरा जाते हैं और सामने वाले को लगता है पता नहीं इसने कैसे लिया, इनको समझ में आया नहीं आया. मैंने अपनी मन की बात उनको कही कि आप बहुत अच्छा ये करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा पेंट करते हैं, बट दे जस्ट स्माइल्ड एंड लेफ्ट. सो कहना भी बहुत आवश्यक है. ऑलराइट, आई हेट दिस, आई हेट दिस. मुझे इससे नफरत है, आई हेट दिस. राइट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आई हेट दिस. ओके, दैट्स इन्फ्यूरिएटिंग, दैट्स इन्फ्यूरिएटिंग. ये मुझे गुस्सा दिलाने वाली चीज है. दैट्स इन्फ्यूरिएटिंग. सो बच्चे ने कहा कि मैंने होमवर्क नहीं कहा, सो द father got angry. He says that's infuriating, that's infuriating, that's infuriating. ये बहुत गुस्सा दिलाने वाली चीज है, तुम्हें होमवर्क करना चाहिए था. Okay, I'm so angry, I'm so angry, I'm so angry. Right, मैं बहुत गुस्सा हूं, I'm so angry. Okay, ridiculous, ridiculous, बहुत ही बेहुदा. ridiculous मतलब क्या लगा रखा है आपने, हमने आपको कुछ कहा है करने के लिए और आप इसका बिल्कुल नॉनसेंस बना के लेके आए. That's ridiculous, ridiculous, right? That's what you say, ridiculous. Ridiculous means बेहुदा, बहुत ही बकवास, घटिया, ridiculous. Okay, what nonsense, what nonsense, which means ये क्या बकवास है, what nonsense. यदि आपको कोई कुछ कह रहा है और आपको लग रहा है क्या बोले जा रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, what nonsense, right? तो your expressions should go in lines with your expressions of the word as well. Disgusting, डिसगस्टिंग, बहुत ही बेहुदा, घिनौना, घटिया, बकवास, डिसगस्टिंग. किसी ने कुछ काम करके दिखाया, आपको कैसा लगा, ये आप 25वीं बार कर रहे हैं, दिस इज द 25th टाइम यू आर डूइंग दिस वर्क, दिस इज डिसगस्टिंग, दिस इज डिसगस्टिंग, बहुत ही घटिया है. राइट, जल्दी कीजिए, हरी अप, कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट, हरी अप. नेक्स्ट, क्विक 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 क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक, ये हम कह सकते हैं. लेट्स गो, चलिए चलो चलते हैं, लेट्स गो, कम ऑन, लेट्स गो. नेक्स्ट, That's incredible, that's incredible. Again जो हमने देखा था unbelievable, उसी फैमिली से है ये. That's incredible. ओ ये अविश्वसनीय है, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं इस बात पे. That's incredible, that's incredible. Example, oh that Britisher, he appreciated my English. Oh that's incredible. उसने मेरी अंग्रेजी की तारीफ करी. Oh that's incredible. Then I can't believe it, I can't believe it, I can't believe it. मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा है. I can't believe it. And the next, oh wow, oh wow. शुरुआत में हमने wow देखा था, अब अंत में देखा है oh wow. सेम है, सेम फीलिंग है. अगेन एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए. oh wow. चलिए ये कुछ हमने देखे हैं और कुछ और हम देख लेते हैं फटाफट से. What a surprise, what a surprise. अरे वाह, कितनी हैरानी की बात है, कितने आश्चर्य की बात है. आपके सामने आपका कोई पुराना मित्र आ गया 5 साल बाद, एकदम से उसने फोन पे जरूर बात की थी आपसे और आपको पता नहीं था वो एकदम से मिल जाएगा. ओह व्हाट अ सरप्राइज टू सी यू हियर, व्हाट अ सरप्राइज टू सी यू हियर. मैं हमेशा थोड़ा सा एडिशनल बात बोलूंगा ताकि आपको उसका कॉन्टेक्स्ट मिले. ओह व्हाट अ सरप्राइज टू सी यू हियर. आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, सुनिएगा, देखिएगा, लिखिएगा अपनी नोटबुक में, और अगर आपको फिर भी डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा. सो व्हाट अ सरप्राइज टू सी यू हियर. कितनी आश्चर्य की या हैरानी की बात है तुम्हें यहां देखकर. आगे, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, हे भगवान, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस. ये एक तरह का एक जॉय है, एक एंथुसियाज्म है जो आपके शरीर से, आत्मा से, बातों से निकल के आता है. एकदम से आप कोई चीज देखते हैं या कोई चीज करते हैं, ओ माय गुडनेस,
we are going to win, oh my goodness, we are going to win, हम जीतने वाले हैं, oh my goodness, right? It's like an expression that you say. I'm so sorry again when you are sorry about something. How lovely, कितनी अच्छी बात है, how lovely. किसी ने कुछ बना के आपको दिखाया, oh how lovely. किसी ने कहा आज हम शाम को डिनर पे जाएंगे, oh how lovely, right? तो ये आप यूज कर सकते हैं. या फिर I adore you, which is again like I love you, I really adore you, I adore you. And the last one is I am furious, I am furious, I am furious. You can also say I am furious, which is मैं बहुत नाराज हूं, मैं बहुत बहुत नाराज हूं, राइट? आपको याद होगा infuriating, यहां पे हमने देखा था. I'll just take you back over there. Yeah, that's infuriating. ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला है. That's infuriating. तो वो जो चीज है वो मुझे गुस्सा दिलाने वाली है, लेकिन यहां पे अब मैं गुस्सा हो चुका हूं. I am furious. I'm furious. यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होना. बताइए, यहां तक क्लियर है सभी को? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, इस क्लास में हो सकता है कि मैं आपको कहूं कि अनम्यूट कीजिए, बोलिए, लेकिन रिपीट करने का यहां पे भी सेंस नहीं है. समय लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा. मैं आने वाले दिनों की क्लासेस में आपसे हिंदी में बोलूंगा या आपको एक सिचुएशन दूंगा, आपको मुझे बताना है कि उस सिचुएशन में आप कैसे एक्सप्रेशन काम मिलेंगे, बिकॉज दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न देम. Okay, let's move ahead. Now, as I told you, today is a spoken class wherein we'll talk about introducing ourselves. हमने कल एक इंट्रोडक्शन देखा था जॉन का, और आज हम दो छोटे छोटे इंट्रोडक्शन और देखेंगे और एक फॉर्मेट समझेंगे, और बाद में आपसे पूछेंगे अपने आप को आप इंट्रोड्यूस कीजिए आज की क्लास में. सो बिल्कुल रेडी रहिएगा, बिकॉज अभी समय है हमारे पास अच्छा सा. हर एक व्यक्ति से मैं कहूंगा अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिएगा, आपको मैं सुनूंगा और आपको मैं करेक्ट करूंगा अगर मुझे लगता है कोई सीरियस सी बात है जो मुझे आपको करेक्ट करनी चाहिए, राइट? बिकॉज इन द एंड वी ऑल आर हियर टू टॉक इन इंग्लिश एंड टू इंप्रूव आवर लैंग्वेज स्किल्स. ऑलराइट, so let's move ahead. Now I am going to show you a simple format as to how do you introduce yourself. How do you do that? It's very simple. The very simple way is, I heard yesterday some people were saying myself. आप avoid कीजिएगा myself. मैं कभी ऐसा बोलूं तो वो सही नहीं होगा. मैं कहूंगा हेलो, माई सेल्फ जयवर्धन. हेलो, माई नेम इज जयवर्धन. इट इज अ फॉर्मल वे टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आप माई सेल्फ के बाद अपना नाम रखते हैं, दैट्स नॉट करेक्ट, राइट? तो ध्यान रखिएगा, इसको हमें नहीं बोलना है. हमें हमेशा बोलना है हेलो, माई नेम इज सो एंड सो, एंड नेवर एवर हेलो माई सेल्फ रिद्धिमा, हेलो माई सेल्फ सोहन. नो, दैट्स नॉट करेक्ट. Always say hello, my name is Sohan. Hello, my name is Riddhima. That's a proper way to show your name and to express yourself. All right, so you would say hello, my name is so and so. I am. या फिर आप ये बोल सकते हैं I am Sohan. I am Riddhima. But it is always preferable to say hello, my name is. क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि I am रिद्धिमा जो है वो नाम ही है, क्योंकि नाम जो है वो बड़ा इंडियन नेम है. सो आप स्पष्ट कीजिए हेलो, माय नेम इज सो एंड सो. क्योंकि जब इंटरनेशनल सेटअप में आप अपना नाम बताते हैं तो हमें कहना पड़ेगा ये मेरा नाम है, हेलो माय नेम इज सो एंड सो. ये यदि कहेंगे ना आप हेलो आई एम जयवर्धन, तो हो सकता है बहुत लोगों को समझ में नहीं ये क्या है, ये कोई विशेषण है, ये क्या है, ये कोई और कोई संज्ञा है. व्हाट इज दैट? It's a name? Yes, it is. So tell it very clearly. Hello, my name is. So that is the most preferred way to give your name, right? Okay, then nice to meet you. Pleased to meet you. I'm from Jaipur. I'm from Delhi. I'm from Gurgaon. I live in. अब देखिए, मैं कहाँ से हूँ और मैं कहाँ रहता हूँ, उसमें फर्क होता है. You know it very well. Where do you come from and where do you live presently? आप अभी कहाँ रह रहे हैं? There's always at times difference. So I am from, let's say, Delhi. But I am living in Mumbai. I live in Mumbai. I work as, मैं किस भूमिका में काम करता हूँ, मेरा क्या काम का फॉर्मेट है. I work as, you can say, I work as an executive, I work as a general manager, I work as whatever your designation is. आप उस designation को बताएंगे. I am a student. I study at, let's say, University of Rajasthan. I study at Delhi University, whatever is the name of your university. I work at, आप कहाँ पे काम करते हैं? I work at Genpact. I work at, let's say, any company, any company's name you would put over here. This is, अब आपने किसी और को इंट्रोड्यूस किया. This is my friend Sarita. This is my friend Sarita. ये मेरी फ्रेंड सरिता है. This is my colleague Sarita. This is, अब this is कह के दूसरे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करवाते हैं. Have you met?
आप किसी से पूछ रहे हैं आप कभी मिले हैं क्या सरिता से? हैव यू मेट सरिता? हैव यू मेट सरिता? आप सरिता से मिले हैं? या फिर लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। कई बार होता क्या है, कोई हमें कह ही नहीं रहा कि आप अपने आप को प्रस्तुत कीजिए, तो आप बड़े ऑकवर्ड हो गए। अब मेरे को कोई कह ही नहीं रहा कि अपने आप को प्रस्तुत कीजिए, सबने तो बोल दिया, मुझे किसने पूछा ही नहीं। तो आपने बड़ा स्माइलिंग फेस लेके कहा ऑलराइट, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज जयवर्धन, आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई गिव ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इंग्लिश टू स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। राइट, तो इस तरीके से आप अपनी बात चालू कर सकते हैं, ऑकवर्ड भी नहीं लगता है, आपको भी झिझक नहीं होती है और आप बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। राइट, ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू। और आप यदि इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे सरिता को सबके सामने तो आप कहेंगे लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सरिता, लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू सरिता। आप सभी को मैं सरिता के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। I said the opposite. अब मैं आप सभी के सामने सरिता को प्रस्तुत करना चाहूंगा। So let me introduce you all to Sarita, right? So this is the way you could say. I'll just re-say it. Let me introduce you to Sarita. So in this case, how it goes? Let me introduce you to Sarita. अब इस केस में क्या होगा कि मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं सरिता के सामने, right? So let me introduce you to Sarita. So मैं आपकी बात करूंगा. So Sarita, this is my friend Raj. He is an executive in some company, whatever the name of the company is. He works as a senior representative of the company. ये भी हो सकता है option. He is currently managing 2 positions, whatever the details are. You talk about that. But when you say let me introduce you to so and so, तो उस केस में क्या होगा, जिसको पहले नाम लिया है उसको आप प्रस्तुत कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति के सामने। एक बार फिर से उदाहरण देता हूं अगर कुछ कंफ्यूजन हो गया है तो। Let me introduce you to माय बॉस। चलो मैं तुम्हें मेरे बॉस के सामने प्रस्तुत करता हूं, हो सकता है उन्हें पसंद आ जाए तुम्हारा कैंडिडेचर। सो हेलो सर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द अदर पर्सन, राइट? यू गॉट द हैंग ऑफ इट, ओके? देन डू यू नो, डू यू नो, क्या आपको पता है? डू यू नो, राइट? क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं? सो आप बोल सकते हैं डू यू नो मैथ्यू, डू यू नो सोफी, क्या आप सोफी को जानते हैं, क्या आप मैथ्यू को जानते हैं? तो इस तरीके से भी हम बात को चालू कर सकते हैं। हाउ डू यू डू, आपको याद होगा कल भी हमने इस क्वेश्चन पे चर्चा की थी, जब हम हालचाल पूछते हैं तो हम बोल सकते हैं हाउ डू यू डू। इसका कहीं पे भी ऐसा मतलब नहीं है कि हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप ये कैसे बनाते हैं, आप ये कैसे करते हैं, इट्स नेवर दैट वे। सो हाउ डू यू डू इज हाउ आर यू, आप कैसे हैं। What do you do exactly? The question is आप क्या करते हैं? What do you do? Right? You can very simply ask, what do you do, sir? So the other person is going to tell as to what this person does. मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, जो भी उस व्यक्ति का प्रोफेशन है। Where are you from? आप कहाँ से हैं? Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे फटाफट से जो हम पूछ सकते हैं, और आज की क्लास में हम पूछेंगे एक दूसरे से, तो आप एकदम अलर्ट रहिएगा, रेडी रहिएगा, एक दूसरे से हमको सवाल भी पूछने हैं, राइट? ओके, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? आपकी उम्र क्या है? आप कितने साल के हैं? हाउ ओल्ड आर यू? आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? आप कहां से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहां रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आपका प्रोफेशन क्या है? व्हाट इज योर प्रोफेशन? क्या आप छात्र हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं? आर यू अ स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशनल? वर्कर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप वर्किंग प्रोफेशनल इज अ बेटर टर्म। आर यू अ स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशनल? अ वर्किंग प्रोफेशनल, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, विच स्कूल और कॉलेज डू यू गो टू? आप कौन से स्कूल या कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए? विच स्कूल और कॉलेज डू यू गो टू? देन वेयर डू यू वर्क? आप कहाँ काम करते हैं? व्हाट आर योर हॉबीज? आपकी हॉबीज क्या है? व्हाट आर योर हॉबीज? ये पूछा जाता है जनरली हमसे इंटरव्यू के दौरान, वो जानना चाहते हैं कि आपके शौक क्या क्या है। व्हाट आर योर हॉबीज? डू यू हैव एनी सिबलिंग्स? डू यू हैव एनी सिबलिंग्स? आप जानते हैं सिबलिंग्स? एनीवन? व्हाट डज दैट मीन, सिबलिंग्स? Yes, sir. Yes, Yeah, what does that mean, siblings? Anyone? sir. भाई बहन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो भाई बहन का मिश्रित जो एक शब्द है वो होता है सिबलिंग। सो डू यू हैव एनी सिबलिंग्स? यस आई डू, आई हैव गॉट वन सिस्टर एंड आई हैव गॉट वन ब्रदर, राइट? सो डू यू हैव एनी सिबलिंग्स? व्हाट इज योर फेवरेट फूड? व्हाट इज योर फेवरेट फूड? आपका पसंदीदा भोजन क्या है? व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? व्हाट इज योर फेवरेट कलर? और अंत में डू यू लाइक टू ट्रैवल? जैसे कल हमें शायद राजेश्वरी ने बताया था कि उनको घूमने फिरने का शौक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है, डू यू लाइक टू ट्रैवल? देन शी सेज यस, आई लाइक टू ट्रैवल, आई लाइक टू गो टू द नेबरिंग कंट्रीज, आई लाइक टू गो टू द माउंटेन्स, आई लाइक टू गो टू द बीच। Then the question can be why? What is there that draws you over there? What is there that pulls you over there?
क्या है ऐसा वहां जो आपको खींचता है? सो आपने कहा जो भी आपका आंसर है, आई लाइक द ब्यूटी, आई लाइक द कामनेस, आई लाइक द सेरेनिटी, मुझे ये सब बहुत पसंद आता है। वहां पे जो एकदम काम शांत जो माहौल है या जो खूबसूरत वहां के जो लैंडस्केप्स हैं वो सब मुझे पसंद है। सो यू ऑलवेज हैव टू डेवलप योर आंसर, इंश्योर कीजिएगा आप अपने आंसर को डेवलप करें, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना सा बोलना यस नो से काम नहीं चलेगा, राइट? इसके अतिरिक्त आपको अपना आंसर डेवलप करना आना चाहिए। Serenity. या सेरेनिटी, serenity, SERENITY, I'll write it down for you, serenity, SERENITY, serenity. Serenity is peacefulness, बहुत शांत, काम, serenity, बहुत ही serene, serene भी होता है, she's very serene, SERENE, serene. किसी व्यक्ति का व्यवहार होता है ना, बहुत ही शांत है, काम है, कंपोज्ड है, हम उसको बोलते हैं serene। और ये किसी के लिए एक विशेषण की तरह काम में लिया जाता है, oh she is very serene, he is very serene. Yeah, Rubina, you want to say something? Yeah, Rubina. Serene. Yeah, serene, 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 and serenity. Yeah, Rubina, I didn't get you. Spelling, I've written it on the board, SERENE, Okay. right? And serenity is a noun. जो serenity है वो संज्ञा है और serene जो है वो विशेषण है, right? आपको किसी की क्वालिटी बतानी, oh she is very serene, she is very serene, लेकिन that place is full of serenity, वो जो जगह है वो पूर्ण रूप से भरी हुई है शांति से और एक calmness से, तो आप कहेंगे serenity, that place is full of serenity. Alright, so आप Thank you. नो प्रॉब्लम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आपके पास खूब सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आपको जवाब देना है। अभी हम आपके साथ जब इंट्रोडक्शन लेंगे आपका, तो मैं आपसे जरूर सवाल पूछूंगा, तो इन्हीं में से प्रश्न पूछूंगा, अलर्ट रहिएगा। आपकी क्विकनेस पे हम ध्यान देंगे, आप कैसे जवाब दे पाते हैं, और दूसरा आपके प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट आवर आइडिया इज। चलिए, कल हमने देखा था जॉन को, आज मैं आपके सामने पढ़ देता हूं प्रिया के बारे में। लेट मी आस्क समवन टू रीड इट फॉर अस, राइट? सो उससे क्या होगा, थोड़ा सा हम प्रोनाउंसिएशन पे काम कर पाएंगे। सो आई विल रैंडमली आस्क समवन, सो आई वुड आस्क, लेट्स टेक राजेश्वरी. Rajeshwari, could you help us please to read this little text? Excuse me, sir. Yes, sir. Yeah, Arvaz, you want to say something? I could not watch proper screen. Sorry, you could not watch? Screen. तो आप उस केस में कहिए, सर एक्सक्यूज मी, आई कैन नॉट सी द स्क्रीन, आई कैन नॉट सी द स्क्रीन. Can you still not see the screen? Is it not visible to you, Arvaz? No? No, sir. So what you do is that you turn off your, I would say, video once, and then you restart it. Just see if it works for you. Krishnamanyu, is it fine for you? Because you told me you had a problem with the screen. Krishnamanyu, is it okay now? Yes, sir. Yes? Okay. Arvaz, you could do one thing. You could turn your camera off and you could restart and just see if it's fine for you. Tell me. Yes, sir. It is okay. Yeah, exactly. So that's what I told you. Where there's a will, there's a way. You remember this expression? What does that mean? Where there's a will, there's a way. क्या मतलब है इसका? Exactly. जहां चाह वहां राह। आपने चाहा कि सर हो जाए ऐसा, तो हो जाएगा। So right, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। चलिए, so we'll ask Rajeshwari to help us read this little text in English. Yeah, please go ahead, Rajeshwari. Should I zoom it? Is it visible to everyone? It's okay. sir. It's okay. चलिए, great. Rajeshwari, please carry on. Hi, I'm Priya. I'm 16 years old. I am student at ABC school. I'm in the 10th grade. I live in Delhi with my family. I enjoy studying science, especially biology. I like to participate in school science fair. In my free time, I love reading books and drawing. I also play basketball with my friends. I want to become a doctor in the future. I am very dedicated to my studies and work hard to achieve good grades. I believe education is the key to success. I am also enjoying music and often listen to it while studying. My favorite subject is biology because it helps me understand how living things work. I also volunteer at the local animal shelter on weekends. Helping animals
give me great joy. I'm very close to my family and we often spend time together. My parents are very supportive of my dreams. I'm excited about the future and the opportunities it holds. Nice to meet you. All right, great. Thank you so much, Rajeshwari. It was beautiful. Indeed, there were some words here and there, but by and large, it was great. Wonderful. Thank you. So she read it very nicely. Now I'll reread it for you all. What you have to do. जब मैं आपके लिए पढ़ूंगा उस समय आप भी अपने दिमाग में उसको पढ़ेंगे, अपने दिमाग में पढ़िएगा इसको और इंश्योर कीजिएगा कि कहाँ डिफरेंस आ रहा है, मैं कौन सा शब्द अलग पढ़ रहा हूँ और आप कौन सा शब्द अलग पढ़ रहे हैं, बस उसी शब्द पे काम करना है, बाकी तो आपके सारे शब्द सही, राइट? Okay, so I'll do it for you. It goes like this. Hi, I'm Priya. I'm 16 years old. I am a student at ABC School. I am in the 10th grade. I live in Delhi with my family. I enjoy studying science, especially biology. I like to participate in school science fairs. In my free time, I love reading books and drawing. I also play basketball with my friends. I want to become a doctor in the future. I am very dedicated to my studies and work hard to achieve good grades. I believe education is the key to success. I also enjoy music and often listen to it while studying. My favorite subject is biology because it helps me understand how living things work. I also volunteer at a local animal shelter on weekends. Helping animals gives me great joy. I am very close to my family and we often spend time together. My parents are very supportive of my dreams. I'm excited about the future and the opportunities it holds. Nice to meet you. Alright, so you must have heard me speak. आपने सुना होगा मुझे बोलते हुए. अभी कुछ शब्द ऐसे हुए होंगे जो आपने अलग बोले होंगे अपने दिमाग में और मैंने अलग बोले होंगे, सो आपको उन पे काम करना है, राइट? ध्यान दीजिएगा, फिर से इस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा, जिन जिन शब्दों में फर्क था सिर्फ उन्हीं पे काम करना है और धीरे धीरे आपके जो बोलने का लहजा है उस पे भी आपको काम करना है, राइट? हो सकता है कि हम इसको बहुत ही रेगुलर तरीके से बोलते हैं, अब धीरे धीरे मेहनत कीजिए, मेहनत इस तरीके से कीजिए कि आप जो प्रोनाउंसिएशन है, बिकॉज मुझे पता है कई लोग इसमें प्रोनाउंसिएशन पे भी काम करने आए हैं. Pronunciation can only get better and better when you work on it in a way that you hear well, you listen well. जब आप अच्छे से सुनेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप सही सुनेंगे तो आप अच्छा बोल पाएंगे. For example, let's take one more line of the same thing. Hi, I'm Priya. I'm 16 years old. I am a student at ABC School. I am in the 10th grade. I live in Delhi with my family. I enjoy studying science, especially biology. Biology. राइट हो सकता है किसी ने इसको बायोलॉजी पढ़ा हो, कुछ और पढ़ा हो, तो बायोलॉजी. आई लाइक टू पार्टिसिपेट इन स्कूल साइंस फेयर्स. कई बार हम बहुवचन नहीं कर जाते, पढ़ते पढ़ते एस भूल जाते हैं. फेयर, फेयर्स सुनाई देना चाहिए. इन माई फ्री टाइम आई लव रीडिंग बुक्स एंड ड्रॉइंग. आई ऑल्सो प्ले बास्केटबॉल विद माई फ्रेंड्स. कई लोग फ्रेंड्स. I want to become a doctor in the future. I am very dedicated to my studies and work hard to achieve good grades. I believe education is the key to success. I also enjoy music and often listen to it while studying. My favorite subject is biology because it helps me understand how living things work. I also volunteer at a local animal shelter on weekends. Helping animals gives me great joy. I am very close to my family and we often spend time together. My parents are very supportive. Of my dreams. I am excited about the future and the opportunities it holds. Nice to meet you. Is that clear to you? Clear हुआ सभी को? Yes, ma'am. बात मेरी बिल्कुल मानिएगा कि ये टेक्स्ट जो हम इसको इतना निर्जीव मानते हैं ना, इसमें क्या जान है, इसको क्या पढ़ें, इसको आप दम लगा के पढ़िए, मन से पढ़िए, अच्छा उच्चारण लेके पढ़िए और ऐसे पढ़िए कि आप एक नेटिव व्यक्ति के रूप में पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको खुद को फर्क सुनाई देगा, समझ में आएगा. एंड दैट्स हाउ यू ग्रो. इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट कोई चीज नहीं होती है कि हमको किसी ने कोई एक घोल ला के पिलाया जादुई और पी लिया और हम बोलने लगे अंग्रेजी. ऐसा नहीं होगा. यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. इंश्योर कि आप अच्छा कंटेंट सुने, अच्छे लोगों को सुने, उनका उच्चारण सुने, उस चीज को देखें वो कैसी लिखी हुई है. तो इस क्लास में मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प करूंगा इस चीज के लिए. तो आप हमेशा इंश्योर कीजिएगा कि जो भी आप बोल रहे हैं वो दिखे आपको और जो भी आपको दिख रहा है वो आप उसको बोलें.
दिस हैज टू गो हैंड इन हैंड, तभी आपके स्पीकिंग स्किल्स सुधरेंगे, स्पीकिंग स्किल्स सुधरेंगे तो आपके राइटिंग स्किल्स भी सुधरेंगे. इट गोज हैंड इन हैंड. कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है. आप अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा लिखेंगे, और अच्छा लिखेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे. Everything is interconnected, right? So work hard on that. All right. Moving ahead, now we have another one, which is about Anjali. She is a housewife. Let's see if we can quickly talk about her. So I would like to request this time, let's take Arvaz. Arvaz, could you help us read this little text in English, please? Yeah. Hello, my name is Anjali. I am 40 years old. I am a housewife. I take care of my family and home. I live in Jaipur with my husband and 2 children. My husband is an engineer and our children are in school. My day starts early in the morning. I prepare meals, clean the house, and help my children with their studies. I enjoy cooking and often try new recipes. I also love gardening and have a small garden at home. In my free time, I like to read books and listen to music. I am very active in my community and often practice in local events. I believe in living a healthy lifestyle and often go for morning walks. I also practice yoga to stay fit. Family is very important to me, and I love spending time with them. We often go on picnics and outing together. I am very organized and manage my time well. Nice to meet you. All right. Thank you so much, Arvaz, for that reading. It was good. Indeed, it was good. Everyone, did you get a chance to hear him? आपको सुनाई दी Arvaz की आवाज? Yes, sir. Right? Yeah. Okay. Okay, great. Because it is important that we get to know what others are doing. बाकी लोग क्या कर रहे हैं हमें ये भी पता होना चाहिए. हम अगर सारी मेहनत खुद की गलतियों से ही सीखेंगे तब तो बहुत लंबा समय लगेगा. कोई अच्छा कर रहा है तो वहां से सीख लेते हैं, कोई गड़बड़ कर रहा है तो वहां से भी सीख लेते हैं कि वैसा नहीं करना. इट इज समथिंग दैट वी हैव टू म्यूचुअली लर्न, वी हैव टू हेल्प म्यूचुअली एंड वी हैव टू ग्रो म्यूचुअली. दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो इट वाज अ ग्रेट ट्राई अरबाज. द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से इज आप जब प्रोनाउंस कर रहे हैं चीजों को, आप समय ले रहे हैं, अपना समय लीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. धीरे धीरे बढ़िए और धीरे धीरे स्पीड को लीजिए. सो दैट वाज वन ऑफ माय कमेंट्स, व्हिच मींस कि धीरे धीरे में स्पीड पकड़नी है. कुछ एक वर्ड्स हियर एंड देयर थे, जैसे आपने शायद इसको आवर पढ़ा, इसको आर पढ़ेंगे हम. और कुछ वर्ड्स के अंदर जैसे कुकिंग था, इसमें डबल ओ है तो कुकिंग हो जाएगा. रेसिपीज है ये यहाँ पे शब्द. सो इन शब्दों पे आपको ध्यान देना है और धीरे धीरे आपके ब्रेन को मैसेज दीजिए कि ये जो आने वाला शब्द है, आंखें फटाफट से उसको देख के आपको रजिस्टर करवाएं और साउंड का उसका आपको रिकॉग्निशन होना चाहिए. और ये तभी होगा जब आप उन शब्दों को पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे, देख चुके होंगे एट लेंथ, डिटेल में, और वो शब्द आपके लिए नया नहीं होगा. जैसे इसमें बहुत सारे शब्द आप जानते हैं, हेलो माय नेम इज अंजलि, ये तो कोई भी बोल सकता है क्योंकि आपने सब देख रखा है. कुछ नए शब्द हैं, उनको हमें जानना है. और जो पुराने शब्द हैं उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, बहुत कर्णप्रिय होना चाहिए, बहुत मधुर होना चाहिए. अंग्रेजी इतनी फ्लूइड होनी चाहिए कि मजा आ जाए, सामने वाला सुने तो लगे अरे कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है ये, मतलब इतना बेसिक सा वाक्य बोला पर कितना अच्छा लगा मुझे, मुझे भी ऐसा ही बोलना है. राइट? सो वी हैव टू मेक एन एफर्ट. सो इन द सेम क्वेस्ट, इन द सेम इंटेंशन, वील मूव अहेड. मैं आपके लिए पढ़ देता हूं एक बार. वही ट्रिक आपको अपनानी है. आप सभी को इंश्योर करना है कि कितने शब्द हैं जो मैंने अलग बोले और आपने अलग बोले, उस पर हम काम करेंगे. और यदि प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो अब हमें फ्लुएंसी पे आना है. स्पीड भी लेनी है धीरे धीरे, एकदम से नहीं लेनी स्पीड, कड़ाकड़ 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 ऐसे नहीं पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना है, बट आपको स्पीड भी लेनी है. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू मूव टुवर्ड्स. सो आई विल रीड दिस होल टेक्स्ट फॉर यू इन इंग्लिश. इट गोज लाइक दिस. Hello, my name is Anjali. I'm 40 years old. I am a housewife. I take care of my family and home. I live in Jaipur with my husband and 2 children. My husband is an engineer
and our children are in school. My day starts early in the morning. I prepare meals, clean the house, and help my children with their studies. I enjoy cooking and often try new recipes. I also love gardening and have a small garden at home. In my free time, I like to read books and listen to music. I'm very active in my community and often participate in local events. I believe in living a healthy lifestyle and often go for morning walks. I also practice yoga to stay fit. Family is very important to me and I love spending time with them. We often go on picnics and outings together. I'm very organized and manage my time well. Nice to meet you. Alright, is that clear? समझ में आया सभी को? Yes? Yes, sir. ओके सो दिस इज एन एक्टिविटी. देखिए अभी हम हर एक को तो नहीं कह पाएंगे कि इसको पढ़िए, लेकिन आप घर पे इस वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा, फिर मेरी आवाज को सुनिएगा, फिर देखिएगा कि क्या अभी भी फर्क है या हमने उसको कम किया है. राइट मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं लास्ट टाइम धीरे धीरे. हेलो, माय नेम इज अंजलि. आई एम 40 years old. I am a housewife. I take care of my family and home. I live in Jaipur with my husband and 2 children. My husband is an engineer and our children are in school. My day starts early in the morning. I prepare meals. अब यहाँ पे कॉमा है तो हमें एक पॉज लेना है. I prepare meals, clean the house and help my children with their studies. I enjoy cooking and often try new recipes. I also love gardening and have a small garden at home. In my free time, अब देखिए जब नया चीज चालू हुई तो हमने उसमें थोड़ी सी एनर्जी दी. In my free time, फिर पॉज लिया. In my free time, I like to read books and listen to music. जो and होता है वो भी एक गैप देता है. I like to read books and listen to music. I'm very active in my community and often participate in local events. I believe in living a healthy lifestyle and often go for morning walks. I also practice yoga to stay fit. Family is very important to me. ये एक तरह का डिक्लेरेशन है, उन्होंने ऐलान किया है क्या कि फैमिली मेरे लिए बहुत जरूरी है. तो देखिए वही फील वही रखिए आप. फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. यहाँ पे इंटोनेशन लेना है. अब आपको लग रहा है सर ये तो बहुत सारी चीजें कैसे हम सीख पाएंगे. आराम से धीरे धीरे, पर आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें हैं, ये एक मोनोटोनस रीडिंग नहीं है, यानी एक ही स्तर पे नहीं पढ़ना. इसमें हमें जान डालनी है, इसको ऊपर नीचे पॉज, तब सुनने वाले को मजा आएगा. ये इसी प्रकार से कि आप अपना परिचय दे रहे हैं और इतने इंटोनेशंस के साथ, तो सामने वाले को अच्छा लगेगा सुनकर. सो family is very important to me and I love spending time with them. We often go on picnics and outings together. I'm very organized and manage my time well. Nice to meet you. क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है हमारा पर्पस क्या है इस चीज का? Yes? All right, great, wonderful. So I'll just quickly do one little thing. अब मैं आपको कुछ expressions और vocabulary एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम फटाफट से आपसे पूछना चालू करते हैं. So I'll quickly take you to this point. All right. Okay. Just a second. All right. I don't think so this will work. All right, I'll just do it other way then. Okay. All right. So अब हम थोड़ी बहुत vocabulary देखते हैं फटाफट से हमारे सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए, और कुछ एक्सप्रेशंस भी देखेंगे हम. So name, age, profession, education, hobby, interest, experience. अपने एक्सपीरियंस की बात कर सकते हैं. I have a total 10 years of experience. I have a total 10 years of experience. Skills, आपके क्या कौशल हैं. Strengths, my strengths are, अपनी strengths बताएंगे. My weaknesses are, मेरी कमजोरियां हैं. कोई कमजोरी है आपकी तो आप वो बताएंगे, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो कोई पूछ सकता है आपसे what are your strengths and weaknesses. What are your strengths and weaknesses. तो हमें पता होना चाहिए हमारी कमजोरियां क्या है. जनरली हमें कोई ऐसी कमजोरी नहीं बतानी है जो प्रॉब्लमैटिक हो. हमें बताना है कि मैं थोड़ा सा चीजों को लेके बहुत पर्टिकुलर हूं, मुझे जब तक वो चीज हो नहीं जाती ना मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ. ऐसी कोई आपकी कमजोरी है तो वो हम बताते हैं प्रोफेशनल लाइफ में. राइट. ओके. बैकग्राउंड, फैमिली, एड्रेस, सिटी, कंट्री, लैंग्वेज, गोल, अचीवमेंट, पैशन, रोल. कोई ऐसा शब्द है जो आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे कहिएगा, मैं पॉज करूंगा आपके लिए. मोटिवेशन, एस्पिरेशन, आपकी क्या आकांक्षाएं हैं. पर्सनालिटी, क्वालिफिकेशन, बर्थ प्लेस, एम्बिशन. आई एम वेरी एम्बिशियस, मैं बहुत ही महत्वाकांक्षी हूँ, मैं बहुत ही, मेरे बहुत आशाएं हैं, मेरे बहुत ज्यादा ख्वाब हैं. सो यू कैन ऑलवेज से आई एम वेरी एम्बिशियस.
So महत्वाकांक्षी, introduction, responsibility, learning, understanding, opportunity, work, contribution, achievement, confidence, leadership. आपकी अगर ऐसे skills हैं कि आप leadership की भूमिका में रहते हैं, I have certain leadership skills. मेरी कुछ जो ऐसे skills हैं जो leadership के हैं, मैं मतलब जो है नेतृत्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. Organization, culture, values, belief, challenge, environment, development, communication, cooperation, creativity, decision making, discipline, responsibility, success, vision, teamwork, innovation, problem solving, productivity, reliability, time management, self confidence, presentation, interaction, and goal setting. I work with a goal setting approach. I work with a goal setting approach. मैं एकदम गोल सेट करने के बाद वाले तरीके से ही आगे बढ़ता हूं जीवन में. आप ये बातें बता सकते हैं. और आप जब अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो उस समय हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे एक्सप्रेशन डालने पड़े जिनसे आप अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व की बात बताना चाहें. तो आप कह सकते हैं नो पेन नो गेन. बिना मेहनत के कुछ फल नहीं मिलता. सो नो पेन नो गेन, ये आप यूज कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में जहां पे भी आपको ठीक लगे. नॉलेज इज पावर. नॉलेज इज पावर. जो ज्ञान है ना वो बहुत एक शक्ति के समान है. वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, हमने देखा था. एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. जो हमारे शब्द होते हैं वो कम बोलते हैं, लेकिन जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हम काम करते हैं, वो ज्यादा बोलते हैं. तो कम बोलिए और काम करिए. इस तरीके की इच्छा जब हमारी होती है तो हम कहते हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. आगे, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. हमने देखा था कि हर मुश्किल घड़ी में भी एक आशा की किरण होती है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. आपके साथ बातचीत करते हुए इंटरव्यू के दौरान या किसी भी व्यक्ति की बातचीत के दौरान सच्चाई पे बात हुई तो आपने कहा यस ऑफ कोर्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट. आप बात कर सकते हैं. फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड. फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, यानी जो फॉर्च्यून है ना, जो किस्मत है, जो नसीब है, वो भी जो मेहनती होता है उसी का साथ देता है. तो मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा रहता हूं. मैं मेहनत करता हूं. दैट्स व्हाई आई एम समवन हु इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड. एंड एज वी नो दैट फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड. Fortune favors the bold. So am I really interested in working in that direction, right? The early bird catches the worm. The early bird catches the worm. जो सुबह सुबह जल्दी उठता है ना, वही अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करता है. तो हम ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. अंत में दो छोटे से एक्सप्रेशंस आपके लिए. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. किसी भी किताब को उसके मुख्य पृष्ठ से आप उसको जज नहीं कर सकते. उसके अंदर का क्या कंटेंट है वो तो आपको उसके अंदर जाकर ही पता चलेगा. सो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. किसी ने चर्चा के दौरान ऐसी कोई बात कही कि वो लोग ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो आपने कहा नो नो नो, आई थिंक वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर. हमें उसको जानना चाहिए. और अंत में द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. द पेन is mightier. Mightier यानी ज्यादा शक्तिशाली होता है than a sword. Sword आप समझते हैं तलवार. So, तलवार से ज्यादा एक पेन होता है. यानी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ज्यादा महत्व रखते हैं. आप चाहे कुछ भी कर ले दुनिया में, इधर से इधर हिला के रख दें, लेकिन आपके कम्युनिकेशंस कैसे हैं, लिखित हो या आपके मौखिक हो, बोलने वाले हो, कम्युनिकेशंस, that should be stronger and that is mightier. It's bigger than the sword, which means communication and expression can be more powerful than force. आप कितने दम लगा लें, लेकिन आप अगर अच्छा आपके शब्द होंगे, आपकी वाणी अच्छी होगी, तो वो पहाड़ जैसे व्यक्ति को भी पिघला देगी. राइट? सो विद दैट वी हैव कम टुवर्ड्स अ लिटिल part of our discussion about your self introduction. So are you all ready? Sir. चलिए, I'm looking forward to listen to every one of you. So आपको करना क्या है, आपको अपने बारे में बताना है और कल जो बताया था उससे ज्यादा विस्तृत रूप से बताना है. Hello everyone, my name is so and so, I come from so and so place and I am a student, I'm a housewife, I'm a working professional. और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा बीच में, देखते हैं आप कैसे जवाब देते हैं. चलिए, so let me see who all are there. Okay, so we'll start with Deepti. Deepti, good evening Deepti. Good evening, sir. How are you doing? I'm doing fantastic, sir. I'm doing fantastic, sir. चलिए, बहुत अच्छा आपने यूज किया. थोड़ा और कॉन्फिडेंट होके यूज कीजिएगा अगली बार. राइट? घबराहट नहीं लगनी चाहिए, एकदम बिंदास होके. चलिए दीप्ति, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. I am Deepti Godika. I Yeah. am 45 years old. Yes. And
I am a teacher in Right. Dolphin School. Right. I live in Jaipur. I am from Lucknow, UP. From UP. Right. I enjoy my job. Oh, great. Oh, wonderful. You enjoy your job. What do you like the most about your job? Time spent with children. Okay. I enjoy. Okay. I enjoy. I enjoyed. Very good. Very good. अभी आप देखिए आपने खुद ने अपने वाक्यों को बहुत अच्छी संरचना दी. आप पहले आपने कहा time enjoy with children. I enjoyed. So the time that I spend with children, I enjoy that a lot. So अब आपको करना क्या है, दीप्ति and everyone, आप जो broken phrases हैं उनको जोड़िए. The time that I spend with kids, with children, I enjoy that the most. Right? इस तरीके से आपको उसको change करना पड़ेगा. चलिए, that was great, Deepti. And what do you like to do on weekends? Weekend, I like to shopping. Okay. On weekends, I like to do shopping. I like to do shopping, right? I like to do shopping. मेरे को shopping करना पसंद है. I like to do shopping. Oh, wonderful. I think all women, everyone likes to do shopping. Great. Thank you, Deepti. Okay, let's move to the next person. Dia. Good evening, Dia. How are you doing? Good evening, sir. I'm doing great. Great. What about you? I am perfectly fine. Thank you so much to have asked me. Present yourself, Dia. Tell me something about yourself. Hello everyone, I'm Diya. I'm from Ambala, Haryana. I live in Chandigarh and currently I'm studying in University of Rajasthan. My subject is political science and I'm preparing for UPSC. All right, great. And why did you choose this subject, Dia, political science? Does it interest you? Yes, I'm very interested in politics, so that's why I choose this. Okay, great. I'm very much interested in politics. That's why I chose this subject. And not I choose this subject, right? And that's why I chose. Past tense mein baat karein, and that's why I chose this subject. Very good. Do you find it is difficult for you to study political science? No, sir. I like to enjoy political science. Okay, I like it or I enjoy it, right? I like to enjoy will be little complicated. You like it and you enjoy it, so they both are synonyms. So I like it a lot, I enjoy it a lot. Okay, great, wonderful. Wishing you a lot of success, Dia, in your future endeavors with political science. Moving ahead, we have Krishna Manu. Krishna Manu, good evening. How are you doing? Good evening, sir. How are you? I am perfectly fine. Thank you to have asked me. So tell me, Krishna Manu, are you a student or you are a working professional? Sir, student. Sorry? Sir, student. Okay, you are a student. Which class are you in? Sir, college first year. Oh, you are in a college. You're in the first year. And which subjects do you have, Krishna Manu? Sir, arts. Okay, good. Now see, this is the intention. When someone asks you a question, you should not limit it to just one word, right? Slowly and gradually you'll have to expand it. इसको धीरे धीरे बढ़ाना है. किसी ने पूछा, which subjects do you study? Arts. It's a good answer. गलत नहीं है answer, Krishna Manu, but आपको कहना है, I have arts as my mainstream, in which I have history, geography, economics, whatever your subjects are. थोड़ा सा आप उसको डेवलप कीजिए. उससे होता क्या है, सामने वाले को ना केवल ये मौका मिलता है कि वो अगला प्रश्न पूछे, बल्कि उसे ये भी पता चलता है कि आप इंटरेस्ट रख रहे हैं उसके प्रश्नों में. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो हो सकता है कि अभी आपको थोड़ी घबराहट हो, पर आपको घबराना नहीं है. आपको एकदम रिलैक्स होकर, बिंदास होकर हमसे बात करनी है और आपको इंश्योर करना है कि आप अपने आंसर को थोड़ा सा इलेबोरेट करें. इससे क्या होता है कि सामने वाले को भी मौका मिलता है अगला प्रश्न पूछने के लिए. और ये जनरली एक टेंडेंसी है, जब कभी भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो आप थोड़े से, बहुत ज्यादा लंबे लंबे आंसर्स नहीं देने की, रुक ही नहीं रहे. आप एक शब्द से थोड़े से बड़े, एक दो वाक्य में अपने आंसर्स बनाइए, so that you give some space, some possibility to the other person to ask you some more questions and to feel that you're interested in responding to him or her. That's very important. Okay, Krishna Manu, so where are you, which city do you live in? Sir, Neemuch, Madhya Pradesh. All right, so you're living in Neemuch, Madhya Pradesh. Great. And is there any speciality? Is there any specialty about this city, Neemuch? Any specialty that you have about this city, Neemuch?
Why is it famous, this city? And any reason? Anything that is famous about this city? No, nothing really? All right, not a problem. Anything you'd like to say, Krishna Manu? All right, but don't worry at all. But the intention in this whole class is that we have to speak. हमें बोलना है, गलत हो, सलत हो, जैसा हो बोलना है. I'm there to correct you, right? Not only it's about English language, but it's also about confidence. It's about the power to speak. You shouldn't feel hesitant. आपको बिल्कुल घबराना नहीं है. Okay, moving ahead, we have Rajeshwari. Rajeshwari, you just read a beautiful text for us. You live in Switzerland. How do you? Yes, sir. Yeah. So how do you like that country? I like Switzerland very beautiful. Switzerland is a beautiful, and I feel like a home now because I'm living here since last 12 years, Right. and I have many friends. So that's why I'm feeling like home. Okay, great. And which other languages do you speak over there? Do you speak a bit of German? Do you speak a bit of French? I don't know which Yeah. part are you in. I speak German, not Right. much, but at the A2 level. Okay, you have done your A2 level in German. All right, great. A2 level. And there are a lot of advantages living abroad, but there are some inconveniences as well. There are some disadvantages as well. Do you miss your home at times? The Indian food, the Indian festivals. Does it happen to you at times? Yes, at the starting, I have missed my Indian festival and food, but right now we all together celebrate our festival. We book some hall and we Yes. celebrate together with friends and family. All And right. here we have many Indian community. So we Right. celebrate Diwali, Ganesh Chaturthi, Oh, wow. and Garba as well. Oh, great. So yeah. Wow. So for as per at the part of festival and friends, I don't miss much. Family, yes, I miss my family. Oh, that's great. That's great. So it's so amazing. That's amazing. आपको याद है हमने सीखा था. That's amazing. So अभी राजेश्वरी ने कुछ हमें बताया और हमें बहुत amazing लगा. So that's amazing. So you don't come to India, rather you bring complete India to your country in this way, isn't it? But every once in a year we come to India because Okay. I wanted to know our culture and family to, Yes. with my kids. Yes. So Yes. they should know about our culture and our country. So that's why Absolutely. every year Absolutely. once Totally. a year we come to India. Great, great. Wonderful, Rajeshwari. It is a pleasure to talk to you because we get to know other perspectives also. Great. It's always a pleasure to talk to every one of you. Just little quick corrections for you, Rajeshwari. For example, आपने एक जगह बोला, I have been living in Switzerland for past 12 years. आपको ध्यान रखना है कि आपको Yes. प्लूरल पे बहुत ध्यान देना है, राजेश्वरी. 12 Yes. years, right? वो years का साउंड सुनाई देना चाहिए. और एक जगह आपने कहा कि जब आप शुरुआत में आए थे स्विट्जरलैंड तब आप थोड़ा मिस जरूर करते थे, तो आपने कहा इंग्लिश में एट स्टार्टिंग आई हैव करके आपने कहा, तो आपको कहना चाहिए एट द बिगनिंग आई यूज्ड टू मिस. आई यूज्ड टू, ये टेंस से मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्लिच था, वो मैं आपको बताऊंगा. बाकी अदरवाइज आपके आइडियाज बहुत क्लियर हैं, बहुत क्लीन है, बट यू हैव टू जस्ट रीफ्रेम देम एट सर्टेन पॉइंट्स, अदरवाइज इट्स ग्रेट. ओके, वंडरफुल. Okay, moving ahead, we have Arvaz. Good evening, Arvaz. Talk about yourself. Hello, good evening. Hello. Everyone. Yeah, Arvaz. Good evening. Please talk about yourself. My name is Abbas. I am from Bihar, but I live in Noida. I live in Noida for 1 year. I am graduate. I speak English and German. Right. In my family, apart from my parents, I have got one sister, one brother. In my free time, I listen to music and watch reels. I love music. Oh, you love music. So do you even sing? Do you like to sing as well, Arvaz? I'm saying, do you like to sing as well? Do you like to sing as well?
I like singing. And which language do you sing in? Do you sing in Hindi? Do you sing in English? Do you sing in German because you learn German as well? Hindi, of course, and also English, German. Okay. And what kind of future opportunities do you see for yourself after having learnt English? What future opportunities do you see for yourself after having learnt English? Where do you see yourself? I want to I want to speak very well, and I want to improve my communication skills. Right, perfect. I think that's a great thing, and that's a great thought. Everyone has to work on their pronunciation skills, their communication skills to be a better speaker, to be a great orator, so that you can actually transfer and convey your feelings, your emotions, and your thoughts to the other person in a very effective way. Great, wonderful, Arvaz. I think you would be singing in some time for us in our class in English. We look forward to your English song, Arvaz, someday. Is it possible for you to sing someday for us in English? Yeah, I will. Yeah, you'll try? Okay, so start preparing a song for us in English from today onwards. One fine day we'll ask you to sing for us. Great. Because you know, when you sing in English, it also helps your pronunciation. When you sing in English, it helps your pronunciation. So we will see it. Let's see how our journey unfolds and how it moves ahead. We would also dash in some songs, perhaps. Let's see. Okay, next we have, so thank you, Arvaz, for your kind participation. We have Rubina. Yeah, Rubina, over to you. Please talk about yourself to us. Yes, sir. Hello, sir. Good evening, sir. Good Good evening. evening, everyone. My name is Rubina. I am from West Bengal, famous for Rasagolla and Yeah, also Jagadasti Puja, Durga Puja. And I live in Puducherry. right. I am a research scholar at School of Education, Pondicherry University. Hence, I am doing research in the field of climate change. Right. My aim is to sensitize the learners about the climate change and its consequences through modifying their behavior and attitudes. Oh, great. I am very much passionate, I am very much ambitious about my future, and I believe action speaks louder than words. Great. Hence, Absolutely. I am always working hard to be a passionate and energetic professor. Oh, wonderful. Wonderful. I Uh, I love also gardening, great. and I have a small garden in my balcony, Oh, and wow. I enjoy to explore new recipes. Oh, wonderful. Okay. Oh, that's Yes. great. And in my free time, I like to spend time with my friends, Yeah. watching movies, Uh-huh. and my strength is my family, Right. and my weakness is I can concentrate one work at a time. Okay. Thank you, sir. Nice to meet you. Same here, same here. It's a wonderful experience to get to know all of you. And I think very interestingly, you have put forward a point, Rubina, that you are working towards sensitizing people about the climate change. I think that's a very important point. It is the need of the hour. ये बहुत अभी ज़रूरत का जो समय है वो यही है कि हम इस पर्यावरण को बचाएं, उसके प्रति एक जागरूकता जो है, एक सजगता रखें. ये बहुत important है, and I think you're working hard for it. So bravo and congratulations for thinking about the planet. That's very important. And great. And apart from that, I think you're sorry. Oh, nice of you. Oh, that's nice of you to have thought about it, because it's not everyone's cup of tea. It's not everyone's cup of tea. Everyone's cup of tea का मतलब है हर व्यक्ति के बस का रोग नहीं है ये. It's not everyone's cup of tea that you are thinking about protecting and conserving this beautiful Mother Earth. So thank you for that. And I think you are Actually, someone. I am Yeah. so connected with the nature. Yeah. So from my childhood, that's why I choose this topic that I could sensitize Yes. to the learners Great. in the school. Great. And my field is the school education. Yes, Education. That's yes. And- I think as teachers and as influencers, we have a lot of impact on people who listen to us, and when we convey good messages to them, we in fact charge them up. We pass on them our energy, we pass on them our thoughts, and that's how we sensitize them, and we ignite those minds, and they work equally hard to protect the nature. I think that's a great job you're doing, bravo.
And you are also very passionate about your work. You are an ambitious person. You are an energetic teacher. So I think there are a lot of qualities that are coming in, and you have a beautiful small kitchen garden in your balcony, wherein you grow your flowers, your vegetables, perhaps. I don't know much about it, but that's a great thought. So great, great to know about you, Rubina. All right. Thank you, sir. Perfect. So nice of you. Thank you. Right, moving ahead, we have Mansi. Mansi, good evening. Can you hear me? Good evening, sir. Mansi, do I pronounce your name correctly? Is it Mansi or is it Manshi? Manshi. Manshi, exactly. So, see, the name is very important. So, because I know your name has Manshi and it's not Mansi. So, I asked you that is it Mansi or is it Manshi? And you are telling me it is Manshi. So, our name is very important. So, whenever we pronounce our name, we have to give the right pronunciation so that the other person addresses us in the right way. किसी का नाम अगर मानसी है तो मैं मानसी बोलूंगा, किसी का नाम अगर मानशी है तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका नाम सही उसका उच्चारण करें. So that's Manshi. All right, Manshi, over to you. Please tell us something about yourself. Hello, good evening, everyone. My name is Mansi Adarshi. I am a BA student of Magar University. I am from Bihar, where the famous thing is Litti Chokha. Oh yeah. Great. Yeah, something more about yourself. That's it? I am passionate about making music and reading novels. Right. In my free time, I enjoy playing games and trying to new food. Okay, you try to learn new recipes. Is it? You try to learn new recipes, want to Manshi? Yes, really. Okay. Right, carry on, please. I want to become an IPS officer. Oh, wonderful, wonderful. Oh, that's a great thought. Absolutely. Nice So, to meet you, sir. same here, same here. It's a pleasure to meet you, Manshi. And you have a varied range of interests. You like to try new recipes. You like to listen to music. You want to be an IPS officer. So I think there's a huge variety that you are bringing to your personality, and that's great. So you must be very studious. You must be studying very hard to be an IPS officer. Are you working hard towards it already? Yes, sir. Yes? Great, great. Our sincere wishes to you, our best wishes to you for your future, for your career, and we hope that you achieve your dreams. So you talked about litti chokha. You talked about litti chokha. Do you know how to prepare that? Yes, sir. You do. All right. And how do you find it? It's tasty. And how do you make it? Is there a secret approach to it, or do you make it in a very regular way? What is so unique about this dish? Regular way. Okay, in the regular way, but it's a great dish, I think, from your region. So it is litti chokha. Great, wonderful. Thank you, Manshi, to have spoken about yourself to us. Next we have, Thank you, thank you. Next we have Pranjal. Good evening, Pranjal. How are you doing? sir. Good evening, sir. So please tell us something about yourself, Pranjal. Good evening, everyone. My name is Pranjal. I'm a student of class 8. Oh, I live in Jaipur, Rajasthan. yes. My hobbies are listening music and playing or practicing handball. Sorry. Oh, wow, handball. That's great. And where do you practice? In your school, or you have a sports club? I practice in my school Right. or sometimes at society. Oh, at the society space as well. Oh, that's great. And do you have a team, or how do you play? Do you go to, I mean, people are around you. How do you contact them? When do you play? How do you go about it? When I practice in my school, there is a team, Right. so we practice all together. All right. And when you're back at your society, how do you do that? At that time, I practice alone for shooting or and Okay. Are you encouraging your other friends to be a part of that handball team in your local community, in your society? Do you tell them to be a part of your team? yes, sir. And what do they say? They find it difficult, or they find it interesting, this game, this sport? They find difficult, so I tell them to do this or this. Sometimes the teachers also come. Oh, great. Wonderful.
Absolutely. I think you are the youngest member of our group, so bravo and congratulations, Pranjal, to be a part of it. And I think you are very active. So keep up your motivation, and I'm sure you would have flying colors in your future. Great. Thank you, Pranjal. Thank you, sir. And last but not least, I think we have one more person. We have Sakshi. Sakshi, you are there. Good evening, Sakshi. Hello, could you hear me, sir? Yes, absolutely. I can hear you, Sakshi. Please tell us something about yourself. Sir, good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, please. My name is I am from UP and I am 19 years old Right. and also from Yes. I have two I have Yeah. two brother. Okay. I want to become in my future. All right. Wonderful. All right. Great, Sakshi. And what do you like to do in your free time? What are your hobbies? But besides, I like spend time with my family Yes. and I like to also movies. Your voice is very low. Sakshi, could you come closer to the microphone? Could you keep the microphone closer to your mouth, please? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, that is better now. Could you re-say once? Yes, sir. Yeah, what do you like to do in your free time, Sakshi? You said you like to spend time with your family and you like to listen to music. What else? Yes, yes, sir. In my free time, I like to spend time with my family, listening music, and watch movies, videos. Great. Okay, wonderful. What kind of videos do you like to watch on YouTube? Yes, sir. What kind of videos do you like to watch? Motivational videos? Do you like to watch language videos? Do you like to watch Yes, what kind of videos? motivation. Motivational videos. Great. Wonderful. I think you get a lot of motivation in this class as well, because I kind of, delve into motivational speeches and expressions, and I think that is going to help all of us together. All right. I think everyone is through. Is there anyone who's left to introduce himself or herself? Anyone? I think largely we are through with everyone. Great. So with that, we have come to the end of our today's session. I hope you liked it. Is there any question from your side? Anything you would like to ask me? Anyone? Anything? Any question? No? All right. So I'll just quickly, yeah, nothing? Something you'd like to ask? Anyone? Okay. No? All right. So I'll just quickly show it to you. I want that you people use and incorporate these expressions in your communication. Whenever you say something, please always use these kind of expressions. They always embellish your thoughts, but at the same time they impress the other person. So please ensure कि आप इनको काम में लें और अपना जो उच्चारण है, जो pronunciation, उसमें बहुत ध्यान दें. जब भी मैं बोलूं मुझे सुने, कोई अच्छा अंग्रेजी में है जो बोलता है उसको सुने, और आप हमेशा इस पे काम करें, दिन रात इस पे लगे रहें, because that's the only key to success. Success does not happen overnight. बस चुटकी बजाती सक्सेस नहीं आती, उसमें मेहनत लगती है, राइट? एंड आई एम श्योर आप लोग इस जर्नी पे हमारे साथ हैं. सो इस पे आप काम कीजिएगा. सारे एक्सप्रेशंस मैंने आपको व्हाट्सएप पे अलग से भेज दिए हैं. ये सारे एक्सप्रेशंस साथ में मैंने आपको जो वोकैबुलरी है वो भी भेजी है, आप इसको भी देखिएगा. जो कल की क्लास है हम उसमें आगे बढ़ेंगे. कल हम वर्ब्स के ऊपर आगे बढ़ेंगे. जो वर्ब्स हैं, बेसिक इंग्लिश के वर्ब्स हैं, उनको हम देखेंगे कि कैसे हम टू बी और टू हैव को देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव में, और उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे. आपके यदि कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको आप जरूर इकट्ठा करके रखिएगा. कल की क्लास में हम उनको भी एड्रेस करेंगे. So with that, we have come to the end of our today's session. I wish you a great evening and see you tomorrow. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir. Thank you.